Good morning. 4.3 exercise class 10 quadratic equation. Question number 8. And question is a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, then it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. We have to find speed of the train. Then we have to assume the speed of the train. So let us assume that let the speed of train be x kilometer per hour. Suppose x kilometer per hour. Now we know that speed is equals to distance upon time. For this we can write time is equals to distance upon speed. Now first condition, a train travels 360 km at a uniform speed. Then time taken by train, suppose t1 is equals to distance that is constant given as 360 km upon speed that is x. In very first condition we have t1 equals to 360 upon x. Now in second condition, suppose time t2. Now we have given that if the speed had been 5 km per hour more, speed had 5 km per hour more, so we have to let speed as x plus 5. Then it would have taken 1 hour less for the same journey. Now what is the meaning of same journey? It means the distance is constant, that is 360. We have to go for same journey, means distance is always constant, so we have to put up distance as 360. Now t2 is equal to 360 upon x plus 5. As you can see, when distance is constant, time is inversely proportional to speed. It means when speed is increased, already time is decreasing. When time is increasing, speed is decreasing. It is clear from the above equation. Now you can see 360 and 360, the distance is constant in both time. Then if speed is increasing, then time is decreasing, and if speed is decreasing, then time is increasing. That is called inversely proportional. Now according to question, now what the question called us, then it would have taken 1 hour less for the same journey. 1 hour less for the same journey. For this journey it would taken 1 hour less. It means, as you can see, t1 and t2, what is the meaning of t1 and t2 here? We know that t1 is greater than t2, since the value of t2 is always less, since the speed is increasing here. So according to question, the difference of both the time t1 minus 2 t2 is equals to 1, that is 1 hour, 1 hour less. सपोज यहाँ पे हमारे पास अगर इसको 360 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने में सपोज 8 घंटे लगते हैं, तो हम स्पीड बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली अब हम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा जा रहे हैं तो हमको कम टाइम लगेगा। तो कितना कम टाइम लगना है? 1 आवर कम लगेगा। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे अपॉन x प्लस 5 है। स्पीड बढ़ा, टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो वही 8 आर यहाँ पे लगा सपोज, और 7 आर यहाँ लगा, तो 8 माइनस 7 दैट इज 1, या 15 माइनस 14 दैट इज 1, या 100 माइनस 99 दैट इज 1। तो डिफरेंस ऑलवेज कितना होने वाला? 1। नाउ वी हैव टू पुट अप t1 एंड t2। सपोज we have equation first and second, then from first and second we get t1 360 upon x
and minus 360 upon x plus 5 is equals to 1. Now on solving we get the quadratic equation. You can see x plus 5, 360 into x plus 5, on taking LCM, or minus 360x is equals to x into x plus 5. Now we have 360x plus 1800 minus 360x is equals to x square plus 5x. 360x and 360x of opposite sign has been cancelled out, and we get x square plus 5x minus 1800 equals to 0. Is required quadratic equation. Now you can solve it by any of one method in fair copy and another two method in rough copy. If x is negative, you have to ignore the things since the speed cannot be negative. Okay, the next question, question number 9, is very important to point of examination view. So please focus here in this video. Two water taps together can fill a tank in 9 hole 3/8 hour. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हम क्वेश्चन को समझें, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो टेप हैं, लार्जर डायमीटर का एक है, स्मॉलर का एक है। यानी कि आप नॉर्मली मान के चलें आपके घर में दो नल हैं, एक नल ऐसा जिसका डायमीटर क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है, बहुत कम पानी आता है उससे, और एक इतना बड़ा पोर्शन है आपका, जैसे कि सपोज हैंड पंप होता है, तो वहां पे से पानी बहुत लार्ज स्केल में आ जाता है, जिसका क्रॉस सेक्शन बड़ा है या फिर डायमीटर जिसका बहुत ज्यादा है, तो उससे पानी बहुत ज्यादा फ्लो हो जाता है। ऐसे दो वाटर टैप को हम जब खोल देते हैं तो 9 होल 3/8 आर के अंदर एक टैंक, बहुत बड़ा टैंक है, वो कंप्लीट भर जाता है जब दोनों एक साथ चल रहे हो। ये समझिएगा इसको। उसके बाद इसमें क्या कहा हुआ है, द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। जो छोटा वाला है, जाहिर सी बात है अगर हम छोटे वाले को अकेला खोलेंगे, पूरा टैंक को भरना चाहेंगे, फिर दूसरे बार में हम बड़े वाले को खोलेंगे, अब पूरे टैंक को भरना चाहेंगे, तो जो छोटा वाला है वो बड़े वाले से 10 आवर ज्यादा समय लगाता है। या फिर ये कह लें जो बड़ा वाला टैंक है वो छोटे वाले से 10 आवर कम टाइम लगाता है। बड़ा वाला अगर 50 घंटे सपोज मान लीजिए 50 घंटे लगा रहा है बड़ा वाला, तो छोटा वाला 60 घंटे लगाएगा। अगर छोटा वाला 40 घंटे लगा रहा है तो बड़ा वाला 30 घंटे लगा रहा होगा। इतना फर्क होता है उसको, अकेले भरता है सेपरेटली। तो हमको अब ये फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली, ईच अलग अलग टाइम में वो सेपरेटली अलग अलग उसको फिल कर पाए, तो कितना समय लगेगा। छोटा वाला भरता तो कितना लगता और बड़ा वाला भरता तो कितना लगता। तो हम वही चीज आपको पहले ही बोला है, जब हमें फाइंड करना होता है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं, तो हम एज्यूम करके चलते हैं। हाँ, तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा था, इसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली लेट द स्मॉलर टैप कैन fill it separately in XR। और जो छोटा वाला XR में भर रहा है तो लेट द स्मॉल या लार्जर दे देंगे, लार्जर टैप कैन फिल इट सेपरेटली इन। अब XR में वो भरता है तो छोटा वाला ज्यादा टाइम लगाता है, तो कम टाइम में भरेगा, यानी कि X - 10 आवर।
अब यहाँ बहुत सी इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझिएगा आप, नॉर्मल बात समझिएगा पहले। सपोज कीजिए हमने आपको कोई होमवर्क दिया, होमवर्क ऐसा कि हमने आपको समर वेकेशन हो रहा आपका और हम आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, और समर वेकेशन है आपका 50 डेज का, ठीक है। तो 50 डेज का समर वेकेशन है और 50 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। हम क्या सोच के चल रहे हैं कि आप पर डे एक एक क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन 50 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप 10 दिन तक काम करते हो, शुरू के 10 डेज आपने क्वेश्चंस किए और आपने 10 क्वेश्चन कर दिए, तो हम क्या कहेंगे आपने कितना काम कर दिया है। अगर आपने 10 डेज में कर दिए हैं, कितने क्वेश्चन कर दिया आपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। चलिए अब हम छोटी सी बात करना शुरू करते हैं, पहले 1 डे का लेके चलते हैं। आपने एक दिन में किया कितना क्वेश्चन किया, 1 आउट ऑफ 50। फिर अगले दिन आपने किया 1 आउट ऑफ 50, फिर अगले दिन आपने किया 1 आउट ऑफ 50। इसी तरह अगर आपने 10 दिन तक किया तो आपने कितने कर दिए, फिर 1 के कितने 1 2 3 4 कितने टाइम्स तक आएगा, 10th टाइम्स तक आएगा। यानी कि टोटल जो सम करेंगे जब हम इनको तो कितना हो जाएगा 10 आउट ऑफ 50, यानी कि 1/5। यानी कि आपने 1/5 क्वेश्चंस कर दिए टोटल होल वर्क का, उसका आपने 1/5 काम कंप्लीट कर दिया है। अगर आप यही काम ऐसे ही करते हुए 25 डेज तक कर लेते हैं तो देखिए 25 डेज में कितना हो जाएगा, 25 ऐसे 1 + 1 + 1 25 टाइम्स, तो 25/50 दैट इज 1/2। यानी कि आपने क्या कर दिया, 1/2 का मतलब समझ रहे हैं आप, 1/2 मतलब हाफ, आपने हाफ वर्क पूरा कर दिया। तो 50 क्वेश्चंस थे, आपने 25 डेज में 25 क्वेश्चंस कर दिए, तो आपने कितना काम कर दिया, आधा काम कर दिया, दैट इज कॉल्ड हाफ। तो हम कर क्या रहे हैं, 1। चलिए और एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं, आप बेटर समझ पाएंगे फिर से। अब सपोज मैं कहूँ आपको कि आपने कोई सपोज के लिए आप कोई एक क्राफ्ट बना रहे हैं और क्राफ्ट बनाने में आपको 4 दिन लगते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपने एक दिन में कितना काम किया है, तो आप क्या कहेंगे, आपने एक दिन में कितना किया, 1/4। फिर नेक्स्ट डे कितना किया आपने, 1/4, फिर नेक्स्ट डे 1/4, फिर नेक्स्ट डे 1/4। यानी कि टोटल आपने 4 दिन में कितना कर दिया, 4/4 मीन्स 1 का मतलब यहाँ पे है 100%, यानी कि वर्क इज डन, कंप्लीट काम का आपने कर लिया है। 4/4 का मतलब मैंने कहा 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा, 1 के कहने का मतलब है कि वर्क इज डन, दैट इज 100% वर्क इज डन योर। तो हम कर क्या रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर एक दिन का काम हमको फाइंड आउट करना था तो हमने किया 1/50। यहाँ पे अगर हमको एक दिन का काम फाइंड करना था तो हमने किया 1/4। यानी कि हम यूनिट टाइम का जब काम फाइंड करते हैं, वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय अस इन यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल्स टू 1 टाइम इन विच द कंप्लीट वर्क इज डन। 1 सपोज मैं आपको कहूँ कि आप 6 घंटे में एक बुक प्रिंट कर देते हो, आप इतने भयंकर हो कि आप 6 घंटे में ये पूरी बुक, ये 1000+ पेज की बुक को प्रिंट कर लेते हो, आप टाइप कर लेते हो 6 आवर में। तो आप 1 आवर में कितना काम कर रहे हैं, 1/6 काम कर रहे हैं आप, पूरे काम का 1/6 पार्ट काम कर रहे हैं आप। ये पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपको बाद में और मिलेगा, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने आपको ये एक्स्ट्रा समझा दिया है। अब आप ध्यान रखेंगे। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे हो रही है, तो स्मॉलर टेप कैन फिल इट सेपरेटली इन XR। जो स्मॉलर वाला है वो XR में इसको पूरा भर देता है टाइम को, XR में तो पूरा भर रहा है, 1 आवर में कितना भरेगा, 1/x। हम लिखेंगे द स्मॉलर टेप fill the part of tank in 1 hour equals to 1/x। जैसे आप 4 दिन में कोई क्राफ्ट बना रहे थे तो एक दिन में 1/4 बना, 6 घंटे में आपने ये टाइप कर दिया था तो 1 घंटे में 1/6 बना, और 50 डेज में आपने क्वेश्चंस किए थे तो एक दिन में आपने 1/50 किया। यानी कि मान के चलिए आपके लिए एक तरह से फॉर्मूला हमने कन्वर्ट करवा दिया आपको कि 1 अपॉन नंबर ऑफ टाइम इन विच द वर्क इज डन।
तो 1 अपॉन, और ये क्या है, स्मॉलर टैप कैन फिल इट इन सेपरेटली इन XR। XR में तो पूरा भर देता, तो 1R में, ये 1R में ये क्या करेगा, फिल द पार्ट ऑफ टैंक, टैंक का कितना पार्ट भर जाएगा, दैट इज 1/x। एंड सिमिलरली द लार्जर टैंक कैन फिल द पार्ट ऑफ टैंक इन 1R इक्वल्स टू 1 अपॉन, और लार्जर वाला भरता था x माइनस 10 में, 1 अपॉन x माइनस 10 में। तो 1 घंटे में सेपरेटली ये भरेगा 1/x, और 1 घंटे में सेपरेटली ये भरेगा 1/x माइनस 10। नाउ क्वेश्चन इज अराइज, 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना पार्ट भर देंगे? तो हम लिखेंगे द बोथ टैप fill that part of tank in 1 hour equals to, अब जाहिर सी बात है दोनों नल खोल देने हमने, और ठीक 1 घंटे तक चलाना है। जो इसने 1/x पार्ट भरा, तो मान लीजिए कि सपोज 1/x में उस टैंक में 70 लीटर पानी भर गया, और इसने भी 1/x माइनस 10 भरा, अभी तो ज्यादा भर रहा, तो सपोज मान लीजिए उसने 200 लीटर भर दिया। इसने 1 घंटे में 210 लीटर भरा, इसने 1 घंटे में 70 लीटर भरा। अगर 1 घंटे तक हम दोनों को चलाते, 1 ही घंटे चलाना है लेकिन दोनों को चलाना है, तो समझिए टोटल पानी कितना भर जाएगा? हाँ जी, 70 एंड 200, यानी कि टोटल 270 लीटर भर जाएगा। हम कर क्या रहे हैं, ये टाइम क्या होगा, 1 आवर में ही दोनों ने भरा 270 लीटर। वही हमने लिखा है, द बोथ टैप फिल द पार्ट ऑफ टैंक इन 1 आवर इक्वल्स टू, ऐड किया ना अभी 270 को, वैसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1/x प्लस 1/x माइनस 10। ये पार्ट है जो 1 आवर में इन्होंने कंप्लीट भर लिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, पहली फर्स्ट लाइन में पढ़ेंगे हम, जिसने कहा था 2 वाटर टैप्स टुगेदर फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर। वो 9 होल 3/8 आवर में कंप्लीट भर देते हैं उसे। फिर से वही बात हो गई, उन दोनों ने मिलकर 1 आवर में कितना भरा हुआ होगा। फिर चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, both tap fill the part of tank in 1 hour equals to, ये तो हमने फाइंड किया जैसे हम एज्यूम करके चल रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया है। आप पढ़ेंगे तो वापस पढ़ ले एक बार लाइन, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर। और 9 होल 3/8 आवर में कंप्लीट भर लेते हैं, जैसे इसने x आवर में कंप्लीट भरा था, x माइनस 10 आवर में कंप्लीट भरा था, तो ये 1/x में 1 आवर में 1/x पार्ट भरता है, और ये वाला 1 आवर में 1/x माइनस 10 पार्ट भरता है। उसी तरह दोनों मिलाकर 1 आवर में 1/x प्लस 1/x माइनस 10 पार्ट भरते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों मिलाकर 1 आवर में कितना पार्ट भरेंगे, 1/, अब जो टोटल टाइम लगा हुआ वही हम कर रहे हैं 1 अपॉन जो टोटल टाइम टेकन है, तो कितना है आपके पास, वो है 9 होल 3/8, 9 होल 3/8, इसको लिख सकते हैं हम 75/8, यानी कि 1 अपॉन 75/8, और ये मिल जाएगा आपको पर रेसिप्रोकल होके 8 अपॉन 75 पार्ट। ठीक है ना, ये पार्ट भर रहा है, ये आर नहीं है, टाइम नहीं, इतना पार्ट उस टाइम का भर गया है। ये दोनों एक ही बात है जो हमने ये वाली लाइन में लिखा है, the both tap can fill the part of tank in 1 hour separately equals to 1/x plus 1/x minus 10, or according to question both the tap fill the part of tank in 1 hour separately equals to 1/75/8, which can be written as 8 upon 75। तो दोनों एक चीज है, तो हमको क्या मिल जाएगा, implies that 1 upon x plus 1 upon x minus 10 is equals to 8 upon 75। बस अब इसको सॉल्व कर लेना, आपको एलसीएम ले लेते हैं, बन रहा है x minus 10 plus x into 75 is equals to 8 and x square minus 10x। तो देखिए क्वाड्रेटिक तो बन जाएगी यहाँ पे, ये x 2x हो जाएगा, इसको इधर लेके आते हैं, ये और आपके पास 8x स्क्वायर माइनस 80x, और ये हो जाएगा पर 2x
और 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150x, और वहां जाएगा तो माइनस का 150x, माइनस 150x। अच्छा, अब यहाँ पे आपका माइनस 10 इंटू 75 माइनस 750, और वहां जाकर जाएगा प्लस का 750, प्लस 750 इक्वल टू 0। बस अब इसको सॉर्ट कर लेते हैं। 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। देखिए जो हमने ब्रैकेट में किया है, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट बाय एनी ऑफ वन मेथड इन योर कॉपी एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ x। बस अब आपको ध्यान रखना है, x का जितना भी वैल्यू आएगा वो तो टाइम होगा किसका, स्मॉलर का, उस टाइम को फिलअप करने का, और उसमें से -10 कर देंगे, वो टाइम होगा लार्जर का फिलअप कर लेने का। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में आती है तो उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपके पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time. They also add intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour, more than that of the passenger train, then find the average speed of the two trains. We have to find average speed. तो देखेंगे वापस क्वेश्चन स्पीड का है, हम ऐसा क्वेश्चन कर भी चुके हैं, आप देख लेंगे जल्दी से। हमको स्पीड फाइंड करना, तो सबसे पहले स्पीड को एज्यूम कर लेंगे, और स्पीड को एज्यूम करने के बाद हम टाइम के लिए इक्वेशन बनाएंगे, एंड देन इजीली वी कैन सॉल्व इट। देखिए इसमें कहा था 1 hour less than a passenger train, ये टाइम के लिए बोल रहा 130 किलो। जिसने कहा मैसूर एंड बेंगलुरु विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन, यानी कि बीच में अगर रुकते हैं, एक ट्रेन जा रही तो अलग अलग स्टेशन पे, छोटे स्टेशनों में रुकती है, तो उस टाइम को हमको कंसीडर नहीं करना है। रुकिए तो दोनों ट्रेन रुकेगी, एक्सप्रेस भी पैसेंजर भी, तो डोंट माइंड कि उन्होंने कितना टाइम वहां पे किल किया होगा, ऑलरेडी गिवन है हमको, ऐसा सोचना ही नहीं है आपको। तो an express train takes 1 hour less than a passenger train, तो स्पीड किसके साथ कंपैरिजन कर रहा है देखेंगे। if the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of passenger, तो पैसेंजर का ले लेंगे आप। let, ये 10th क्वेश्चन आई थिंक, let the speed of passenger train be x kilometer per hour, then that of the express train, जिसने बोला था मोर है, एक्सप्रेस ट्रेन भी 11 प्लस x किलोमीटर पर आवर। तो ये वही बात फिर से, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो वी कैन राइट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नो फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है आपके पास, 132 किलोमीटर है, तो दोनों के लिए टाइम फाइंड आउट हो जाता है हमारे पास। तो हम जैसे t ले रहे हैं, तो अभी हमारे पास पैसेंजर है, इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। tp का मतलब टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस दैट इज 132 किलोमीटर, तो tp इक्वल्स टू 132 अपॉन, एंड स्पीड ऑफ पैसेंजर इज x,
and according to second situation t e means x plus 10 equals to 132 upon x plus 11 or 11 plus x. Suppose first and second. Now according to question it is given that एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन। जाहिर सी बात है इसका स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम कम लेगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो इट मींस कि टीई इज लेस देन टीपी, यानी कि टीपी माइनस टीई इज इक्वल टू 1। आप समझे ऐसे क्यों हो रहा है? टीपी 130/x है, 130/x प्लस 11 है, यहाँ पे स्पीड बढ़ा हुआ है, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, यानी कि इसका टाइम कम लग रहा है तो हम बड़े में से छोटी चीज को कम करते हैं। ठीक, आप ऐसे याद रख सकते हैं टीपी माइनस टी इक्वल टू 1। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड implies that TP that is 132/x minus TE 132/x plus 11 is equals to 1। तो देखिए अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 132x plus 11 और ये हो जाएगा माइनस 132x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x और ये हो रहा हमारे पास 132x प्लस 11 to 22 2 carry 2 11 3 33 1452 minus 132x equals to x square plus 11x। तो ये कैंसिल और ये मिला में फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। नाउ यू कैन सॉल्व फॉर x और जब x मिल जाए तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड वो होगा और एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड में आपको प्लस 11 कर लेना है। तो ये आप कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे जैसे आपको कहा भी गया है कि आपको जब ये सॉल्व करना तो आप सॉल्व करेंगे इसको तीनों मेथड से। दो मेथड तो आपको यूज करने हैं रफ कॉपी पे और एक मेथड आपको यूज करना है फेयर कॉपी पे। तो आप ये सारी चीजें सारे रिकॉर्ड संभाल के रखेंगे। स्कूल खुलने के बाद सारी चीजें आपकी चेक होनी होती है माइंडेड। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक इस एक्सरसाइज का। यस और ये है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, देन फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। तो हम लिख लेते हैं let the sides of two squares be x and y। अच्छा अब सेंटीमीटर या मीटर यूनिट इसका क्या दिया उनको? मीटर। यस x and y मीटर रिस्पेक्टिवली। दो अलग अलग स्क्वायर हैं, स्क्वायर आपको पता तो लगभग कुछ ऐसे होगा कि उसके साइड्स इक्वल होंगी। सपोज एक ये है और एक ये है। सपोज ये x x x है और ये y y y y है। तो स्क्वायर के ईच एंगल 90 होते हैं, ईच साइड इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी। ऐसे सपोज दो हमारे पास स्क्वायर है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना होगा क्योंकि डिफरेंस की बात की, जैसे आपको पहले बोला विच इज ग्रेटर वी हैव टू मेंशन हियर। तो लिख लेते हैं सच दैट y इज ग्रेटर देन x, y ग्रेटर है x से। अब क्या हो जाएगी हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन बन रही है हमारे पास। इसने कहा था सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। तो स्क्वायर की साइड अगर x है, यू नो कि स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन the difference of their perimeter is 24। अब perimeter क्या होता? sum of all sides, sum of all
बाउंड्री दैट इज y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई 4 टाइम्स दैट इज 4y और ये हो जाएगा 4x। अब डिफरेंस कहाँ, तो हम 4x माइनस 4y नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि y इज ग्रेटर देन x। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 4y माइनस 4x, इसका पैरामीटर 4y, इसका पैरामीटर 4x, इक्वल है हमको 24। अगर हम यहाँ पे ये नहीं लिखते तो हमको 4y माइनस 4x इक्वल 24 एक बार लेके सॉल्व करना पूरा, फिर दूसरी सिचुएशन बतानी पड़ेगी तब वहां पे 4x माइनस 4y लेके उसको भी सॉल्व करना। हालांकि रिजल्ट सेम आएगा लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन वही माना जाएगा अगर ऐसा नहीं लिखा है तो। अगर ऐसा लिखा है तो हम ऐसे कर सकते हैं, फिर 4x माइनस 4y करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से 4 कॉमन लेके कैंसिल कर लीजिए, y माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा, 4 यहाँ जा रहा तो 6। अगर y माइनस एक्स इक्वल 6 है तो y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपके पास 6 प्लस एक्स। अब सपोज इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड ले लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड इंप्लाइज दैट, देखिए क्या मिलेगा फर्स्ट सेकंड से, वी हैव टू जस्ट पुट अप वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट x स्क्वायर प्लस 6 प्लस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ऑन सॉल्विंग वी गेट x स्क्वायर एक्चुअली 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इक्वल टू 468 और we can write minus 468 equals to 0. Now we have 2x square plus 12x minus 432 equals to 0. On dividing whole equation by 2, we get x square plus 6x minus 216 is equals to 0. X square plus 6x minus 216 is equals to 0. That is our required quadratic equation. Now but we have to solve the equation and get the value of x. So again we have to take x as positive integer and then put up the value of x in equation second, you get value of y. That is the sides of both these squares. Hence our exercise 4.3 has been completed. And our next video we have discussed about exercise 4.4. So you have to advise complete it up to exercise 4.3. Thank you.